Welcome you friends. In this video we are going to discuss about various diseases of tomato such as damping off, wilt, early blight, late blight, bug eye rot, leaf curl and mosaic. The disease will be discussed on the following topics like causal organism, symptom, etiology, disease cycle, favorable condition and management. So let's get started. Damping off. This disease is caused by Pythium afenidermatum. Coming to the symptom. The symptom occurs in two stages, pre-emergence and post-emergence. In the pre-emergence, the seedlings are killed just before they reach the soil surface. The young radicals and plumules are killed and there is complete rotting of seedling. The post-emergence phase is characterized by infection of the young tissues at the collar region. The infected tissue becomes soft and water-soaked. The seedling topple over or collapse. This is the symptom of damping off. जब सीड की सोइंग हो चुकी है उसके बाद क्या होता है, सीड में जर्मिनेशन होता है और प्लूम्यूल्स और रेडिकल बनते हैं. प्लूम्यूल्स और रेडिकल बनने के बाद जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है फिर इसमें रॉटिंग हो जाती है और ये जो प्लांट है वो सॉइल सरफेस से बाहर नहीं आ पाता. इस कंडीशन को प्री इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं. लेकिन जब सीडलिंग बन चुका है उसके बाद जो इसका कॉलर रीजन है वहाँ रॉटिंग हो जाती है. फिर ये ऊपर का जो पौधा है ये गिर जाता है. इसे पोस्ट इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ कहते हैं. कमिंग टू इटियोलॉजी. द पिथियम बिलोंग टू लोअर फंगस, सब डिविजन मेस्टिकोमाइकोटिना. द माइसिलियम इज ब्रांच्ड, हाइलाइन, एसेप्टेड और सिनोसिटिक. द स्पोरेंजियोफोर्स आर सिंपल and bear single sporangia. This is sporangiophore and this is sporangia. The sporangia are globous without papillae. There is difference between sporangia of Pythium and Phytophthora. That is, the Pythium sporangia is without papillae and Phytophthora sporangia contain papillae. Oospores are spherical and double thick walled. Oospores is sexual spores. The pathogen survive in crop debris as oospore and chlamydospore. Then it will infect to the plant and cause symptom either pre-emergence or post-emergence. It will multiply by taking nutrition from the plant and it produce sporangia. Sporangia also produce juice spores and spread through wind, rain and irrigation water. It will reach to other field or other plant and cause the disease. This cycle is known as secondary infection cycle. Coming to epidemiology. It requires temperature of between 20 to 22 degrees centigrade, more than 90% relative humidity, cloudy days, intermittent rain, dense planting and poor drainage of soil. Coming to management. We should always adopt integrated disease management practice such as use of raised seed bed, provide light but frequent irrigation, provide better drainage, drench with copper oxychloride or Bordeaux mixture to infected area, seed treatment with fungus culture like Trichoderma viride or chemical thyrum, spray 0.2% metalaxyl, sanitation of field, crop rotation with non-host. Coming to wilt. There is two type of wilt. First fungal wilt, another bacterial wilt. Fungal wilt is caused by Fusarium oxysporium pharma specialis Lycopersicki and bacterial wilt is caused by Ralstonia solanacearum.
Coming to symptom of fungus wilt. Clearing of windlets and chlorosis of the lower leaves. Soon the petiole and the leaves droop and wilt. The younger leaves may die in succession and the entire plants may wilt and die. At later stage, browning of vascular systems occur. Diseased plant appear in patches in the field. पहले क्या होता है, जो लोअर लीव्स हैं उनमें येलोविंग होती है, उसके बाद ये ड्रूप हो जाते हैं, मतलब नीचे ऐसे झुक जाते हैं और मुरझा जाते हैं। बाद में जो पूरा प्लांट है वो मुरझा जाता है। अगर हम इन्फेक्टेड स्टेम को कट करके देखेंगे तो हमें ब्राउनिंग दिखाई देता है। ये जो ब्राउनिंग होती है वो फंगस के ग्रोथ के कारण होता है। ये जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो फील्ड में पैचेस में प्रेजेंट होता है, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो कहीं कहीं होते हैं। कमिंग टू सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरियल विल्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल विल्ट्स आर रैपिड एंड कंप्लीट विल्टिंग ऑफ नॉर्मल ग्रोन प्लांट। लोअर लीव्स may droop before yellowing. Pathogen is mostly confined to vascular regions and cause brown discoloration of the tissue. Infected plant part, when cut and immersed in clear water, a white streak of bacterial ooze can be seen. बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, जो यंग सीडलिंग होते हैं उसमें बिना येलोइंग हुए ही उसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं और झुक जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है मोस्टली वस्कुलर टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए बैक्टीरियल डिजीज़ में भी जो वस्कुलर टिश्यू हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और जब हम इन्फेक्टेड प्लांट को लेते हैं, उसके स्टेम को कट करते हैं और उसे क्लियर वाटर में डिप करते हैं, तो ये जो टेस्ट है इसको क्या कहते हैं, ऊज टेस्ट। तो ऊज टेस्ट में हमें क्या दिखता है, वाइट स्ट्रिक में बैक्टीरिया इन्फेक्टेड पार्ट से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम फंगस से इन्फेक्टेड प्लांट को लेंगे और ऊज टेस्ट करेंगे तो ऐसे जो बैक्टीरिया बाहर आ रहे हैं ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। ये है विल्ट अफेक्टेड प्लांट और ये है हेल्दी प्लांट। इसमें येलोविंग हो गई है और पूरा प्लांट मर रहा है, इसका मतलब है दिस इज कॉज्ड ड्यू टू फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और ये यहाँ पर दिख रहा है ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन, ये जो वस्कुलर टिश्यूज हैं वो ब्राउन हो गए हैं। Coming to etiology of fusarium. Fusarium belong to subdivision Deuteromycotina. The mycelium is septate, branched and light pink in color. It produces two types of conidia, macroconidia and microconidia. Macroconidia are boat-shaped, hyaline, long and septate. Microconidia are small, curved and unicellular. Conidiophore. The conidiophore are simple, slender, short and produced in sporodochium. What is a sporodochium? It is a asexual fruiting body. यहाँ पे बहुत सारे माइसीलियम प्रेजेंट हैं, इसमें कोनिडियोफोर आता है और कोनिडियोफोर से कोनिडिया बनते हैं। ये मैक्रोकोनिडिया है, ये माइक्रोकोनिडिया है। यहाँ पर क्लेमाडोस्पोर भी बनते हैं। जो मैक्रोकोनिडिया है उसके कुछ सेल में थिकनिंग हो जाती है, जिसके कारण से क्लेमाडोस्पोर्स बनते हैं। कमिंग टू इटियोलॉजी ऑफ राल्स्टोनिया। राल्स्टोनिया इज अ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंड रॉड शेप्ड. It has only one polar flagella, that is monotrichous polar flagella. Colony. Ralstonia produce pink colored colony in CPG TTC medium. This is the name of culture medium. Their colony are mucoid. You can see in this picture. Coming to disease cycle.
पैथोजन कहाँ सर्वाइव करता है? सॉइल्स में और क्रॉप डेब्रिस में। फिर जब प्लांट्स लगाया जाता है, इसके रूट डेवलप हो गए, इसमें निमेटोड का इन्फेक्शन होता है। निमेटोड रूट्स में इंजुरी करता है। इसी इंजुरी में ये जो पैथोजन के स्पोर्स हैं या बैक्टीरिया है, ये एंटर करता है और वस्कुलर बंडल्स में मल्टीप्लाई होता है। फिर सिम्टम डेवलप होता है। जो बैक्टीरिया है, फंगस है, अंदर में मल्टीप्लाई होते हैं। जो फंगस है वो कोनिडिया बनाता है। फिर ये जो कोनिडिया या बैक्टीरियल सेल इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय या इरिगेशन वाटर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह मूव होते हैं और इस प्रकार से डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है। दिस इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल। उसके बाद में ये सॉइल में और क्रॉप डेब्रिस में पैथोजन सर्वाइव करते रहता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, सैचुरेटेड पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, वार्म एंड मॉइस्ट वेदर, कल्टिवेशन ऑफ ससेप्टिबल वेराइटीज एंड हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन। मैनेजमेंट, we should always adopt integrated disease management practices such as sanitation of the field, removal of crop debris, nematode management, use of healthy seeds, rotation with non-solanaceous crop, sterilization of farm implement, and application of biocontrol agent like Pseudomonas. Coming to early blight, this disease is caused by Alternaria solani. Coming to symptom, this is the common disease of tomato that can occur any stage of the crop growth. The symptom appear as small black lesion mostly on the older leaves, spot enlarge up to 1 centimeter in diameter, concentric rings develop in the center of the disease. Seedling infection cause color rot. Tissue surrounding the spots may turn yellow. If high temperature and humidity occur at the time, much of the foliage is killed. Lesions on the stems are similar to those on the leaves. The fungus also infect fruits, generally through the calyx or stem attachment. Concentric ring also appears in fruits. ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है अर्ली ब्लाइट का। इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये कॉन्सेंट्रिक रिंग जैसा दिख रहा है। मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है ये जैसे सेंटर है तो इसमें एक रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा, ऐसे। दिस इज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो ये जो सिम्टम है ये ऐसे ही दिखाई देता है। ये लीफ में भी आता है, स्टेम में भी आता है और फ्रूट्स में भी आता है। कमिंग टू etiology ऑफ अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया बिलोंग टू सब डिविजन ड्यूटेरोमाइकोटिना। दैट्स वाई द माइसिलियम इज सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड डार्क इन कलर। द कोनिडिया आर म्यूरिफॉर्म. It means longitudinal and transverse septation are present. It is dark and form in chain. Conidiophore are short, dark colored, simple and septate. The perfect stage is Pleiospora. This is the conidia of Alternaria. इसमें ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों सेप्टेशन प्रेजेंट है। ऐसे भी है और ऐसे भी है और ये चैन में बनता है। इसका जो कोनिडियोफोर है ये सेप्टेट होता है और सिंपल होता है। ये है कॉलोनी। इसकी अगर कॉलोनी को भी आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ये रिंग डेवलप होता है। कमिंग टू डिजीज साइकिल, पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा? क्रॉप डेब्रिस में एज अ कोनिडिया। अगले सीजन में जब प्लांट लगाया जाएगा तो उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। जो इन्फेक्शन है मोस्टली ओल्डर लिप में पहले होता है। सिम्टम डेवलप होता है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग डेवलप होते हैं। फिर यहाँ पर कोनिडिया बनता है। ये कोनिडिया विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में जाते हैं, दूसरे लीफ में जाते हैं और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं। बाद में जब क्रॉप ख़त्म होने की स्टेज में आ गया है
तो ये जो कोनिडिया है वो क्रॉप डेब्रिस में सर्वाइव करता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, इट रिक्वायर टेम्परेचर ऑफ 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, more than 90% relative humidity and cloudy days. Coming to management, we should always adopt integrated disease management practice like crop rotation with non-host, sanitation of the field, removal and burning of infected debris, application of organic manure, and we can spray mancozeb when it is necessary. Coming to lead blight. Lead blight is caused by Phytophthora infestans. Symptom: water-soaked lesions appear on the edge of the leaves. Later, it turns to large brown patches with green-gray edge. It is not confined by major leaf veins. Infection progresses through leaflet and petioles, resulting in large section of brown foliage. Same type of lesions also appear in stem and girdle the stems. Dark brown circular spots cover the large part of the fruits. It leads to the dry brown rot. In high humidity, white color powdery fungal tissue may appear on the leaf, fruit and stems. In cool wet weather, entire field turns brown and wilted. ये जो दिख रहा है ये है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का सिम्टम। इसके सिम्टम पहले लीफ के किनारे से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में ये पहले वाटर सोक्ड लीजन टाइप का रहता है, बाद में ये ऐसे ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसे टाइप के सिम्टम स्टेम और फ्रूट्स में भी आते हैं और ह्यूमिड कंडीशन में इसमें वाइट कलर के माइसीलियम दिखाई देते हैं। ये जैसे फ्रूट में रॉटिंग हुई है और इसमें वाइट कलर का जो माइसीलियम है वो भी दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं ये पूरे का पूरा प्लांट मरने लग गया है। अब आते हैं इटियोलॉजी में। जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है, इसीलिए इसका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हाइलाइन होता है। ये है सेप्टेट हाइफी और ये है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी। इसमें आप देखिए इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई, यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप। जो स्पोरेंजियोफोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है। दे आर अनब्रांच्ड, बियर सिंगल सेल्ड, हाइलाइन, राउंड और ओवल स्पोरेंजिया। सो इसका जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड, हाइलाइन और ओवल या राउंड होता है। और एक स्पोरेंजियोफोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है। स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूस स्पोर्स बनाता है। ये यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है। यहाँ से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस स्पोर्स बाहर आते हैं। एक स्पोरेंजिया में 30 से लेके 50 जूस स्पोर्स होते हैं। फिर ये जो एक एक जूस स्पोर्स हैं ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे। द फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। सो oospores इज अ सेक्सुअल स्पोर्स। और क्लेमाइडोस्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा, सर्वाइवल के लिए। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाइडोस्पोर बनता है। अब आते हैं डिजीज साइकिल में। पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एज oospores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। ये oospores क्लेमाइडोस्पोर्स क्या करेंगे, अगले सीजन में इन्फेक्शन करेंगे और ये स्टोमेटा या वुंड के थ्रू पौधे में इंटर करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और ये स्पोरेंजिया बनाते हैं। स्पोरेंजिया से जूस स्पोर्स बाहर आता है और ये जूस स्पोर्स रेन वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में या दूसरे फील्ड्स में मूव करता है और वहाँ इन्फेक्शन करता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, इट रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 20 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड,
more than 90% relative humidity, cloudy days, intermittent rain, dense planting and poor drainage of soil. Coming to management, we should always adopt integrated disease management practice such as crop rotation, summer deep plowing, removal of infected crop debris, proper drainage of the field, selection of healthy seeds. We should grow resistant varieties like Ottawa 31 and Ottawa 30. Seed treatment with Mancozeb, foliar application of Ridomil. The Ridomil is the combination of Metalaxyl and Mancozeb. Soil application of Trichoderma. Coming to buckeye rot. Buckeye rot is caused by Phytophthora nicotiana or Phytophthora capsicum or Phytophthora drachesleri. Coming to symptom. Buckeye rot lesions may cover the half or more of the fruit and the margin of the lesions, and the margin of the lesions will be smooth. Finally, the fungus grow on the infected lesions. This can be seen as white mycelium. While fruit rot is the most common symptom, it also causes damping of and stem cankers. The disease does not affect the foliage, and this is different from lead blight, because lead blight and buckeye rot both are caused by Phytophthora, but this disease does not affect the foliage. Brown and grayish-green water-soaked spots appear on the fruits. These spots develop into lesions that resemble marking of bull's eye or buckeye. That's why the name is buckeye rot. It is characterized by alternating dark and light brown concentric ring in the fruits. These are very smooth lesions, which is different from the lesions of lead blight. This is the symptom of buckeye rot, and this is buckeye. So this look like buckeye, that's why the disease name is buckeye rot. अब आते हैं इटियोलॉजी में. जो पैथोजन है वो लोअर फंगस होता है, इसीलिए इसका जो माइसीलियम है वो नॉन सेप्टेट होता है और हाइलाइन होता है. ये है सेप्टेट हाइफी और ये है नॉन सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी. इसमें आप देखिए, इसमें दो न्यूक्लियस के बीच में कोई, यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में कोई क्रॉस वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो न्यूक्लियस, पहला दूसरा, ये जो दो न्यूक्लियस हैं वो उनके बीच में एक क्रॉस वॉल है जिसे सेप्टा कहते हैं. स्पोरेंजियोफोर इमर्ज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस सिंगली आर इन ग्रुप. जो स्पोरेंजियोफोर है जिसमें स्पोरेंजिया बनता है वो लोअर सरफेस में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आता है. दे आर अनब्रांच्ड, बियर सिंगल सेल्ड, हाइलाइन, राउंड और ओवल स्पोरेंजिया. सो इसका जो स्पोरेंजिया है वो कैसा होता है, सिंगल सेल्ड, हाइलाइन और ओवल या राउंड होता है. और एक स्पोरेंजियोफोर में केवल एक ही स्पोरेंजिया बनता है. स्पोरेंजिया जब जर्मिनेट होता है सो ये जूस स्पोर्स बनाता है. ये यहाँ पर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियोफोर है. यहाँ से जब स्पोरेंजिया रप्चर होता है तो जूस स्पोर्स बाहर आते हैं. एक स्पोरेंजिया में 30 से लेके 50 जूस स्पोर्स होते हैं. फिर ये जो एक एक जूस स्पोर्स हैं ये सिंगल सिंगल इन्फेक्शन करेंगे. द फंगस ऑल्सो प्रोड्यूस ooze spores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स. सो ooze spores इज अ सेक्सुअल स्पोर्स. और क्लेमाइडोस्पोर क्यों बनाया जाता है फंगस द्वारा, सर्वाइवल के लिए. जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तब क्लेमाइडोस्पोर बनता है. अब आते हैं डिजीज साइकिल में. पैथोजन सर्वाइव इन क्रॉप डेब्रिस एज ooze spores एंड क्लेमाइडोस्पोर्स. ये ooze spores क्लेमाइडोस्पोर्स क्या करेंगे, अगले सीजन में इन्फेक्शन करेंगे और ये स्टोमेटा या वुंड के थ्रू पौधे में इंटर करते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, सिम्टम डेवलप होता है और ये स्पोरेंजिया बनाते हैं. स्पोरेंजिया से जूस स्पोर्स बाहर आता है और ये जूस स्पोर्स रेन वाटर या विंड के थ्रू दूसरे प्लांट्स में या दूसरे फील्ड्स में मूव करता है और वहाँ इन्फेक्शन करता है.
Coming to epidemiology. This is favored by warm and wet weather. It requires temperature of 24 to 30 degrees centigrade. Wet soil and soil temperature should be above 18 degrees centigrade. Excessive rain and flood irrigation is favorable for the disease development. Coming to management, crop rotation, summer deep plowing, removal of infected crop debris, proper drainage, selection of healthy seeds, resistant cultivar, seed treatment with mancozeb, foliar application of ridomil, and soil application of trichoderma. This management practices is same as like of lead blight of tomato. Coming to leaf curl. It is caused by tomato leaf curl virus. This is different from tobacco leaf curl virus. बहुत सारे जो बुक हैं या इंटरनेट में आपको मिलेगा कि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय टोबैको लीफ कर्ल वायरस, लेकिन ये टोबैको लीफ कर्ल वायरस से नहीं होता है, ये टोमेटो लीफ कर्ल वायरस से होता है. कमिंग टू सिम्टम, द इन्फेक्टेड लीव्स शो रोलिंग, क्रिंकलिंग एंड ड्रूपिंग. द न्यूली इमर्ज्ड लीव्स शोज येलो कलरेशन and later they also show curling symptom. Older leaves become leathery and brittle. The nodes and internode are slightly reduced in size. The infected plant look pale and produce more lateral branch which gives a bushy appearance. The infected plant remain stunted. इजी लैंग्वेज में समझते हैं. जैसे ये टोमेटो लीफ है, पहले यहाँ पे इन्फेक्शन होता है. इन्फेक्शन के बाद ये जो वायरस है वो प्लांट बॉडी में इंटर करेगा और वहाँ मल्टीप्लाई होगा. फिर ये जो इन्फेक्टेड लीफ है ये क्या शो करेगा? रोलिंग, क्रिंकलिंग एंड ड्रूपिंग. इसके जो लीफ हैं वो फोल्ड होने लगते हैं और ये नीचे ऐसे झुक जाता है. फिर ये वायरस प्लांट के बॉडी में मूव करता है और लीफ टिप में भी पहुंच जाता है. उसके बाद जो भी न्यू लीफ आते हैं उनका साइज़ जो है वो कम हो जाता है और वो येलो हो जाते हैं. बाद में ये भी कर्लिंग सिम्टम शो करते हैं. जो नोड है और इंटर नोड इनका साइज़ भी कम हो जाता है और लेटरल ब्रांच बहुत ज़्यादा आने लगते हैं. इसके कारण से जो प्लांट है वो बूसी दिखाई देता है. ये है इन्फेक्टेड लीफ. इसमें लीफ में रोलिंग हो गई है और ये येलोइंग भी शो कर रहा है. कमिंग टू इटियोलॉजी, दिस इज कॉज्ड बाय टोमेटो लीफ कर्ल वायरस. ये वायरस जेमिनी विरिडी फैमिली में बिलोंग करता है. इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर होता है. ये सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है. इसका जो कैप्सिड है, प्रोटीन का कैप्सिड, वो 2 स्फेरिकल पार्टिकल का जेमिनेट पार्टिकल होता है. मतलब ये जो पार्टिकल हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो जीनोम है वो सिंगल ही प्रेजेंट होता है. इसका जो साइज़ है, एक पार्ट का साइज़ है वो है 30 to 18 नैनोमीटर. इसका ट्रांसमिशन किससे होता है? वाइट फ्लाई से, बेमिसिया टेबेसी. कमिंग टू डिजीज साइकिल, यहाँ पर पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, आपको आगे डिजीज साइकिल समझने में आसानी होगी. वायरस कहाँ सर्वाइव करता है? वायरोलीफेरस इंसेक्ट एंड वीड होस्ट में. अगले सीजन में जब प्लांट लगाया जाएगा, ये हेल्दी प्लांट है, फिर क्या होगा? जो ये वायरोलीफेरस इंसेक्ट है जिसमें वायरस पहले से प्रेजेंट है, ये हेल्दी लीव्स को खाएगा और ये जो वायरस है इंसेक्ट से प्लांट में इंटर कर लेता है. जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होगा और ये पौधे के पूरे पार्ट्स में मूव करता है. फिर सिम्टम डेवलप होता है. फिर जो आसपास दूसरे इंसेक्ट हैं जो नॉन वायरोलीफेरस हैं, जिसमें अभी वायरस प्रेजेंट नहीं है, वो इस इन्फेक्टेड प्लांट को फीड करते हैं, जिसके कारण से ये जो वायरस है इन्फेक्टेड प्लांट से वेक्टर में इंटर करता है
और ये नॉन वायरोलीफेरस वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से ये दूसरे प्लांट में जाएगा और वायरस को स्प्रेड करता है। बाद में ये जो वायरोलीफेरस इंसेक्ट है वो कोलेटरल होस्ट में भी फीड करता है और ऐसे ही वायरस ऑफ सीजन में सर्वाइव करता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, प्रेजेंस ऑफ वायरस, dense planting, high dose of nitrogenous fertilizer, variety susceptible to insect, high relative humidity and cloudy days. Management, we should always adopt integrated disease management practice such as crop rotation with non-host, raise nursery in protected area by using mosquito net or greenhouse, spray imidacloprid to kill the insect, roguing up infected plant. As early as possible, we should rogue out the infected plant. Use disease-free planting material. Sanitation of the field. Removal of weed host. Coming to tomato mosaic. This is caused due to tomato mosaic virus. Symptom. The disease is characterized by light and green mottling on leaves. Affected leaves are usually distorted, puckered, smaller than normal. Newly emerged twig become smaller and pale yellow. The affected plant appear stunted and pale green. ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है मोज़ेक का। इसमें क्या होता है, लाइट ग्रीन और येलो के ऐसे मोज़ेक पैटर्न बन जाते हैं और ये जो लीफ है वो पकर हो जाता है। मतलब ये देखिए इसका जो सरफेस है वो उबड़ खाबड़ टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ऐसे हो जाता है। और जो इन्फेक्टेड लीफ हैं उनका साइज नॉर्मल से कम हो जाता है, पौधे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है और पौधा बौना रह जाता है, स्टंटेड हो जाता है। कमिंग टू इटियोलॉजी, दिस इज कॉज्ड बाय टोमेटो मोज़ेक वायरस। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है जिसका साइज है 6.4 kb, मतलब इसमें 6400 नाइट्रोजन के बेस हैं। इसका जो पार्टिकल होता है रॉड शेप का होता है जिसका डायमेंशन है 18 × 300 नैनोमीटर। इसमें 5% आरएनए होता है और 95% प्रोटीन है। इसका जो ट्रांसमिशन है वो मैकेनिकल ट्रांसमिशन है, ये किसी इंसेक्ट के द्वारा स्प्रेड नहीं होता है। कमिंग टू डिजीज साइकिल, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं डिजीज साइकिल। वायरस है वो कहाँ सर्वाइव करता है, कोलेटरल, पेरिनियल एंड वीड होस्ट में। जैसे ये वीड होस्ट है, फील्ड में सर्वाइव कर रहा है। अगले सीज़न में हम इस वीड होस्ट को बिना रिमूव किए हम प्लांट लगा लेते हैं, तो यहाँ पे प्लांट लग गया। फिर जैसे इंटरकल्चर ऑपरेशन में जो टूल्स यूज़ होता है, अगर वो इसे टच किया है और इंजरी हुई है जिसके कारण से इसका जो शेप है, जो टूल्स है उसमें आ गया है, फिर वो सेम टूल्स को हम यूज़ करेंगे। फिर वो सेम टूल्स अगर हेल्दी प्लांट को टच करेगा और यहाँ पर इंजरी होगी तो क्या होगा, जो वायरस टूल्स में चिपका हुआ है वो हेल्दी प्लांट में एंटर कर जाता है। फिर वायरस है वो मल्टीप्लाई होगा। जो वायरस है प्लांट के पूरे सिस्टम में मूव करता है, सिम्टम डेवलप होता है और फिर से सेम जो इंटरकल्चर ऑपरेशन के समय टूल्स है उसके द्वारा फिर से वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में मूव करते जाता है। तो इस प्रकार जो वायरस है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड होता है। कमिंग टू एपिडेमियोलॉजी, डेंस प्लांटिंग एंड प्रेजेंस ऑफ द वायरस। मैनेजमेंट, यूज ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, सैनिटेशन ऑफ फील्ड, रिमूवल ऑफ वीड होस्ट, रेज नर्सरी इन प्रोटेक्टेड एरिया, रोगिंग ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, स्टेरिलाइजेशन ऑफ टूल्स बिफोर ईच यूज, क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell.
follow our Facebook page Kheti Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.